now let's begin with a new topic of ecology. So basically, we will have some of the name of the scientist and so that you need to remember. The term ecology was coined and described by Ernst Haeckel. Fine, this is very important for all of you to remember. That is, it was coined by Ernst Haeckel. Then the father of ecology is said to be as a writer. Fine, the father of Indian ecology is that is Professor Ramdeo Mishra. Fine, and first of all, term ecology was employed for study of plant by warming. Fine, so these are some of the scientists that you need to remember. Fine, the term ecology was first time coined by Ernst Haeckel. Father of ecology, a very important word, that is a writer, a very important name, writer. देन इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो उनमें है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा एंड पहली बार जब ये वर्ड यूज़ किया गया था फॉर द स्टडी ऑफ द प्लांट्स एंड दैट वाज बाय वार्मिंग. The study, what is basically ecology, is the study of interaction or interrelationship of organisms with their environment is termed to be as ecology. That is the study of interaction or interrelationship of the organism with the environment. organism का environment के साथ कैसा interaction है और या फिर क्या interrelationship है, वो जो process, वो जो particular like interaction होता है, fine, वो उसको बोला जाता है ecology. उसको क्या बोला जाता है? ecology. Wherein ecology is the study of the organisms interaction with that of the environment, or the organisms interrelationship with that of the environment is termed to be as ecology. Fine. Organisms and environment are organization always interdependent, interrelated और mutually relative. So basically organism और जो environment है एक दूसरे पे interdependent है या interrelated है या फिर mutually reactive है. जितना ये इसको देता है वे भी उनको देते हैं. So basically this is a system wherein which is say interdependent or interrelated or mutually reactive. Moving ahead and talking about the branches of ecology. So on the basis of organizational level, वो कितनी complex है, उसका organization कैसा है ecology का, on the basis of that the branches of ecology are of two type, that is autecology and the other one is synecology. So autecology क्या होता है? That is the study of the relation of a single species with the environment. एक ही species का उसके environment के साथ जो relation होता है उसे बोलेंगे autecology. और synecology क्या होता है? रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. जो ग्रुप होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के और उनका जो रिलेशन होता है विद द एनवायरनमेंट इज टर्म टू बी एज सिनेकोलॉजी. फाइन. सो ग्रुप ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्शन विद दैट ऑफ द एनवायरनमेंट इज टर्म टू बी एज सिनेकोलॉजी एंड ऑटेकोलॉजी दैट इज सिंगल स्पीशीज का. फाइन. नाउ इकोलॉजिकल हायरार्की हम देखेंगे जो हमें ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं. दैट इज ऑर्गेनिजम्स. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स create population, that is population is nothing but the group of organism of the same species. जैसे कि dog organism, सारे dog के group के जो है तो that is dog population. human तो human population. same species के group of organisms हो तो उसे population बोलेंगे. different population जैसे कि हम कहाँ रहते हैं तो community में, जहाँ dog population भी होती है, cat population भी होती है, fish population भी होती है, birds population भी होती है, सारे population मिलके बनाती हैं community. When different communities come together and form a complete ecosystem, wherein one community, the second community, third community interacting with a given environment forming ecosystem. Fine. non-living, living creatures सारे को मिला दो तो ecosystem. बहुत सारे ecosystem मिलके बनाते हैं biome. Fine. जैसे कि एक हो गया ecosystem water ecosystem, that is aquatic. एक हो गया समझ लो desert ecosystem. एक हो गया समझ लो terrestrial ecosystem. तो जितने भी ecosystem हैं मिलके बनाते हैं एक बायोम और सारे बायोम मिलके बनाते हैं पूरा अर्थ. दैट इज द होल ऑफ द बायोस्फीयर. फाइन. सो दिस इज द हायरार्की दैट यू नीड टू रिमेंबर. जैसे जैसे हम ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ चाहते हैं उनकी साइज़ भी बढ़ती है, ऑब्वियसली साइज़ बढ़ती है एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है. तो आपको याद रखना है हायरार्की में जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे साइज़ इंक्रीजेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो इंक्रीजेस.
ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे छोटा यूनिट जो होगा एक पर्टिकुलर हायरार्की का, वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम सिंगल एक ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटे यूनिट, फाइन। सो ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ अ यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। अगर इकोलॉजिकल स्टडी करना है तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सबसे छोटे लेवल पे आएगा, फाइन। इट मे बी स्मॉल, लार्ज, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कुछ भी हो सकता है। फिक्स लाइफ स्पैन एंड ऑर्गेनाइज लाइफ साइकिल बोथ टू डेथ। सारे ऑर्गेनिज्म की एक फिक्स लाइफ स्पैन होती है, फाइन, और ऑर्गेनाइज साइकिल होती है बोथ टू डेथ की। ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते जो इमॉर्टल होते हैं, जो कभी नहीं मरने वाले। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जब हम सिर्फ इकोलॉजी की स्टडी करते हैं और सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ते हैं तो उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी भी कहा जाता है। उसे बेसिकली फिजियोलॉजिकल, दैट इज स्टडिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, स्टडिंग ऑफ द इकोलॉजी एट एन ऑर्गेनिज्म्स लेवल इज टर्म टू बी ए साइकोलॉजिकल इकोलॉजी, फाइन। सॉरी, नॉट द साइकोलॉजिकल, सॉरी, बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, फाइन। अब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आगे बढ़ते हैं, तो पॉपुलेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग एट वन प्लेस एट अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। जैसे कि हमारे एरिया के जितने भी समझ लो डॉग्स हैं, तो सारे डॉग्स को मिला के मिलेगी डॉग्स की पॉपुलेशन, फाइन। जैसे कि पॉपुलेशन की हम बात करें तो वो होती है लोकल पॉपुलेशन और डीम्स, सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। जैसे कि लोकल पॉपुलेशन की आप बात करो तो लोकल पॉपुलेशन क्या होता है? जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज होमो सेपियंस इनहिबिटिंग हिल्स और द ह्यूमन बींग्स इनहिबिटिंग प्लेन्स। समझ लो डॉग सर्वाइविंग इन द गिवन प्लेन एरिया, डॉग सर्वाइविंग इन द गिवन हिली एरिया। समझ लो राइस सर्वाइविंग, राइस प्लांट विच इज बीन सस्टेनिंग इटसेल्फ इनटू द हिली एरियाज। तो वो हो गई एक लोकल पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन क्या होती है? जैसे कि हिल्स पे रहने वाली लोकल पॉपुलेशन और प्लेन्स पे रहने वाली लोकल पॉपुलेशन, तो उन दोनों को बोलेंगे सिस्टर पॉपुलेशन। हिल्स पे रह रही, हिल्स पे ग्रो हो रही है समझ लो राइस, और प्लेन पे भी ग्रो हो रही है समझ लो राइस। हिल्स पे ज़्यादातर राइस ग्रो नहीं हो सकती बिकॉज वाटर उधर ज़्यादा रह के नहीं हो सकता। सो बेसिकली समझ लो, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हिल्स के ऊपर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैटल, सिमिलरली प्लेन्स के ऊपर कैटल पॉपुलेशन। सो दोनों जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटर कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, फाइन। जो लोकल पॉपुलेशन है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। जो भी लोकल पॉपुलेशन है, फाइन, विच आर इंटर कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आते जाते रहते हैं, फाइन। इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, दे कीप ऑन डिस्पर्सिंग, जैसे कि उस पॉपुलेशन में चले जाते हैं, कहीं से और से आ जाते हैं, तो उसे बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन, फाइन। जैसे कि कोई भी सिचुएशन के कारण लोकल पॉपुलेशन में से कुछ एक आधा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन रिमूव्स या फिर एंटर्स, तो उसे बोलेंगे मेटा पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन के बारे में हम बात करेंगे तो लोकल, सिस्टर और मेटा पॉपुलेशन। नाउ मूविंग अहेड विद द टर्म दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? तो बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन अ कॉमन एरिया। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो साथ में रहती है, तो उसे बोलेंगे कम्युनिटी। विच आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, जो एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होती है, इंटर डिपेंडेंस होती है इनकी। इट इज़ नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सेम एनवायरनमेंट। वो क्या होता है? नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का नेचुरल एग्रीगेशन होता है, फाइन। तो उसे बोलेंगे इन द सेम एनवायरनमेंट, प्लांट भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं इन अ गिवन एनवायरनमेंट, तो उसे बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे कि बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, सारे मिलके बनाते हैं। जैसे कि हमारे एरिया में ले लो, हम रह रहे हैं, कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं, माइक्रोब्स होते हैं, तो सारे मिलके हम बनाते हैं एक बायोटिक कम्युनिटी, फाइन।
जैसे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कम्युनिटी में होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, डोमिनेंस एंड स्ट्रेटिफिकेशन। फाइन, जैसे कि हम बात करें स्ट्रेटिफिकेशन को लेके हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फाउंड इन अ गिवन कम्युनिटी एंड उसे बोलेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जैसे कि डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द एरिया, जितना साइज समझ लो बड़ा होगा ज़्यादातर स्पीशीज़ ज़्यादा होगी। फाइन, टाइप ऑफ एरिया, टाइप ऑफ सॉइल, अल्टीट्यूड, क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है, कैसा अल्टीट्यूड है, उनके बेसिस पे रहेगी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़। फाइन, ज़्यादा कोल्ड एरिया में हमें ज़्यादा स्पीशीज़ नहीं देखने को मिलेगी। मिड जैसे कि ऐसा एरिया है जहाँ ज़्यादा नहीं ठंड है नहीं ज़्यादा गर्मी है, तो उस एरिया में हमें अच्छी खासी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी। फाइन, फिर होता है डोमिनेंस, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज़, जो सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है। समझ लो प्लांट कम्युनिटी ज़्यादा है उधर, तो प्लांट कम्युनिटी को मतलब में दैट इज़ द डोमिनेंट वन। फाइन, सिमिलरली एनिमल ज़्यादा है तो वो एनिमल कम्युनिटी डोमिनेंस हो गई। फाइन, इट इज़ नोन टू बी एज डोमिनेंट स्पीशीज़, होल कम्युनिटी इज़ नोन बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर dominant species. Fine, that is जैसे कि पूरी जो एरिया होती है वो पूरी एरिया उस पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीशीज़ के नाम से जानी जाती है। जैसे कि प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स, फाइन, एंड पीनस इन हिमालयाज। फाइन, तो उसके नाम से पर्टिकुलर वो जाना जाता है कि भाई ये ट्री लगे हुए हैं। फाइन, तो उनके बेसिस पे ये एनिमल है, इनके बेसिस पे उनको जाना जाता है। फाइन, क्योंकि वो सबसे डोमिनेंट है। नाउ स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग अलग। सो द डिफरेंट ग्रोथ फ्रॉम ट्री, श्रब्स, अंडर श्रब्स, हर्ब्स डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। जैसे प्लांट कम्युनिटी की बात करें तो उसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं। फाइन, अलग अलग, जैसे कि ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, तो उन्हें बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन इन द प्लांट कम्युनिटी। स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स। तो वो ग्रोथ फॉर्म्स जैसे कि हर्ब्स हैं तो सबसे छोटे होते हैं, श्रब्स उनसे बड़े होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो वो प्लांट की कम्युनिटी में स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है। फाइन, तो एक एग्जांपल देखेंगे जैसे कि स्ट्रैटिफिकेशन इन द लेक। लेक की बात करें तो लेक के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन किस तरह से होता है ये हमने पढ़ा था। जैसे कि डीप लेक की बात करें, जोनेशन और स्ट्रैटिफिकेशन में भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइट, किस तरह की लाइट चाहिए उसके बेसिस पे, किस तरह की लाइट पहुंच रही है उस एरिया में, उसके बेसिस पे स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है डीप लेक में। जैसे कि लिटोरल जोन, लेमनेटिक जोन एंड द प्रोफंडल जोन। फाइन, तो जैसे कि हम लिटोरल जोन की बात करते हैं, वहाँ द जोन विच इज़ फाउंड एट द बैंक ऑफ द लेक, जो एकदम नज़दीक पाया जाता है बैंक ऑफ द लेक में, उसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। वेयर वेरी शैलो वाटर मार्शी लैंड इज प्रेजेंट, मतलब बहुत उंडा पानी, शैलो, बहुत शैलो होता है पानी उधर और बहुत डीप डाउन नहीं होता है। रूटेड वेजिटेशन, उस जगह पे हम वेजिटेशन को भी देख सकते हैं। फाइन, फिर होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन होता है, दिस इज़ द जोन ऑफ द लेक वाटर वेयर लाइट रीचेस इन सफिशिएंट अमाउंट, बहुत सफिशिएंट अमाउंट में पहुंचती है इन द एंटायर सरफेस। इट मीन्स दिस इज नॉट टू डीप, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता। इन दिस रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स, सस्पेंडेड एंड सबमर्ज प्लांट्स आर प्रेजेंट। फ्लोटिंग है, सस्पेंडेड है, ऐसे प्लांट्स उधर दिखाई देते हैं। प्रोफंडल जोन की हम बात करेंगे, सबसे डीप एरिया जो होता है जिसको हम बोलेंगे प्रोफंडल जोन। फाइन, ओनली हेट्रोट्रॉप्स उस एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाती तो क्या होगा, ऑब्वियसली लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी तो प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हेट्रोट्रॉप्स पाए जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो ये जो ऊपर का शैलो एरिया होता है जो बैंक के नज़दीक होता है, दैट इज़ लिटोरल जोन। जो बीच वाला जोन है जहाँ लाइट सफिशिएंटली पहुँचती है पूरे एरिया में, जो बहुत डीप नहीं है, तो जहाँ फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, वो दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज़ लिम्नेटिक। एंड जो बहुत डीप डाउन होता है उसे हम बोलेंगे प्रोफंडल जोन। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी कुछ, जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, डोमिनेंस होती है, स्ट्रैटिफिकेशन होती है। फाइन, जैसे
तो वही चीज़ है, वो हो गई उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब स्ट्रेटिफिकेशन का हमने एक एग्जांपल देखा इन अ लेक, वैसे ही स्ट्रेटिफिकेशन एक फॉरेस्ट में भी आप देख सकते हैं अलग अलग। तो जैसे कि द क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन इन वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइट के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया गया है, स्ट्रेटिफाई किया गया है। सरफेस ड्वेलर्स जिनको सबसे कम लाइट चाहिए, फिर होते हैं हर्ब्स, फिर होते हैं अंडर श्रब्स जो इन दोनों के बीच वाले होते हैं, दैट इज अंडर श्रब्स, then shrubs, and then trees on the basis of the light. So this is the basic clear stratification which is found in the tropical rainforest. Fine. So it is known as multi-storied forest. उसे रेन फॉरेस्ट को मल्टी स्टोरेड फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर छोटे से लेके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, लास्ट में एंडिंग में ट्रीज तक। तो ये हो गया स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉरेस्ट। फाइन। Now we shall be studying about the climax, that is the succession and the the different types of communities regarding that of the particular for the particular plant community. Fine, in the coming class. So today we have studied about the basic hierarchy, we studied about organism, population and community. Fine, thank you.